Shalom. You are welcome to Light Church Ministries Worldwide. We are happy to have you. Today, Pastor Daniel will teach us about Kingdom of God. Listen the Word of God and share it to others. Shalom. So let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, we come to the throne of grace and we honor your word and we honor your name, Jesus. Father, give us grace to understand your precious word. And I declare, Lord, let this word give them understanding Amen. of deep things of God. Amen. And Father, I pray over everyone who is watching me live, Amen. or everyone who will see me or who will listen the word of God after this. Let the same blessing and same anointing come upon their lives. Amen. In the name of the Father, Son, and the precious Holy Spirit, Amen. I pray. Amen. Amen and amen. Amen. Today I'm going to share, as you know, I'm sharing the mysteries concerning the kingdom of God. और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बादशाही के बारे में बहुत से मुकाशवात आपसे शेयर कर रहा हूँ About the kingdom of God. और खुदा की बादशाही के Today I select one thing. और आज मैंने मुंतखब किया एक नए उन्वान को. Today I will teach you about the keys of the kingdom of heaven. और आज जो कलाम मैं आपसे बांटने वाला हूँ मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां. Let's open our Bibles and read one scripture, Matthew chapter 16, verse number 19. और आए हम अपने कलाम मुकद्दस को खोलेंगे और एक हवाला पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 19 आयत. Matthew 16:19. और मत्ती की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 19 आयत हम पढ़ेंगे. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा. आमीन. Let's say a word of prayer. Father, this बाप, is your word. ये तेरा कलाम है Help us to understand. और हमारी मदद करके हम इसको समझ सकें. Let this word और ये कलाम enter in our souls, और हमारी रूह में समाए, enter in our bodies. हमारे जिस्म में समाए Open us और हमें खोल दे into your realm, Lord, और अपने आलम में हमें खोल दे so that we can understand your word. ताकि हम तेरे अजीम कलाम को समझ सकें. In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन. Precious people of God, और खुदा के बहुत कीमती लोगों listen. सुनिएगा. There are keys और कुछ चाबियां हैं in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही की कुछ कुंजियां हैं or you can say the kingdom of heaven. और आप कह सकते हैं कि आसमान की बादशाही की कुंजियां. So this is my desire. और ये मेरी ख्वाहिश है All people who are listening me, और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं or they will listen later. और जो इस कलाम के बाद मुझे सुनने वाले हैं, This is my desire for you, और मेरी ये ख्वाहिश है आपकी जिंदगी के लिए so you may understand कि आप इस तमाम कलाम को समझ सकें concerning keys. और इन कुंजियों के मुतालिक. So my God shall open you और मेरा खुदा आपके लिए खोलेगा the door to understand the keys. उन दरवाजों को जो इन कुंजियों की समझ आपको अता करें. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Let's read one more scripture. और आए हम एक और हवाला पढ़ेंगे. Revelation 3, और मुकाशवा उसका 3 बाब verse number 7. और उसकी 7 आयत. Revelation 3, verse 7.
और मुकाशवा 3 बाब उसकी 7 आयत। And the angel of the church of Philadelphia write, These things says he that is holy, he that is true, he that has the key of David, he that opens and no man shuts, and shuts and no man opens. और फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। Now listen, सुनिएगा। in the ancient time, और एशिया के वक्त में, कदीम दौर, और कदीम दौर में, if you read the histories, और अगर आप तारीख का मुतालिया करें, there are kings और कुछ बादशाह हैं and there are land of the kings. और उनके कुछ जमीनें हैं, कुछ जगह हैं, They carry a territories. और उन्होंने कुछ मलकियतें बना रखी हैं। Now listen, सुनिएगा। every king और हर एक बादशाह carry a land, और अपनी मलकियत रखता है, carry a land. और अपनी अपनी जगह रखता है। Now listen, सुनिएगा। in the kingdom, और बादशाहत में the king carry a keys of that kingdom. और अपनी हर बादशाह अपनी बादशाही की कुंजी रखता है। And what is that key? और वो चाबी क्या है या वो कुंजी क्या है? The key represent a power, और एक चाबी जाहिर करती है इख्तियार को या ताकत को, authority. और इख्तियार को जाहिर करती है। Now listen. सुनिएगा। So now Revelation 3:7, और अब मुकाशवा 3 बाब और उसकी 7 आयत के मुताबिक it shows something, और कुछ ये बता रहा है, समझा रहा है, that the keys of the kingdom of David, और दाऊद की बादशाही की कुंजी, or you can say the key of David, और आप कह सकते हैं कि दाऊद की कुंजी, so Jesus Christ और यीशु मसीह carries a key of David. दाऊद की कुंजी रखता है। So who is David? और कौन है दाऊद? We see he's a worshipper. और हम देखते हैं कि वो एक परस्तार है, We saw he's a songwriter. और हम देखते हैं कि वो एक गीत लिखने वाला है, We see he's a writer of prophetic books. और हम देखते हैं कि वो नबूवती किताबों का लिखारी है, And also we see a warrior. और हम ये भी देखते हैं कि वो एक जंगजू है, And we also see he's a shepherd. और हम ये भी देखते हैं कि वो एक चरवाहा है, And we also see he is a great king. और हम ये भी देखते हैं कि वो अपने वक्त का एक अजीम बादशाह है। And that there is a key here. और यहाँ पर एक कुंजी है, The key. वो कुंजी, And that key, the Bible shows that और जो कि कलाम मुकद्दस हमें दिखा रही है Jesus carries the key of David. कि यीशु मसीह ने उस दाऊद की कुंजी को थामा हुआ है। What is that key? और ये किस किस्म की कुंजी है? What is that key? और ये किस किस्म की कुंजी Key है? represent a power. और ये जो कुंजी है वो जाहिर कर रही है ताकत को, Key represent an authority. और वो इख्तियार को जाहिर कर रही है। What does it mean? और इसका मतलब क्या हुआ? Now Jesus is saying to his disciples और अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे that हैं, I am giving you the keys of the kingdom. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिएगा। Now Jesus is giving और अब यीशु मसीह दे रहे हैं what? क्या? Authority. इख्तियार, Authority. इख्तियार, Or you can say a key. और आप ये भी कह सकते हैं कि कुंजी। So now Jesus is giving a key to an apostles. और अब देख रहे हैं कि रसूलों को यीशु मसीह कुंजी दे रहे हैं। What is that key? और ये किस किस्म की कुंजी है? To represent Jesus. वो यीशु मसीह को जाहिर करती है, पेश करती है। Every believer हर एक ईमानदार who believes in Jesus Christ, और जो कि यीशु मसीह पर ईमान रखता है, he carry a first key और वो उस पहली कुंजी को थामे हुए है that Jesus gives to apostles जो कि यीशु मसीह ने रसूलों को अता की to represent him. कि वो उसको पेश करें, वो उसको जाहिर करें। If you believe Jesus और अगर आप आज यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं and you believe he is your king, और आप अपने बादशाह पर यकीन रखते हैं, that you believe he is your king, और आप ये यकीन रखते हैं कि वो आपका बादशाह है, that it is surely accurate thing और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है
That is, it is sure. और कोई किसी किस्म का मुगाता नहीं है। You also carry a key to represent Jesus. और आपके पास भी वो कुंजी या चाबी है जिससे आप यीशु मसीह को पेश कर सकते हैं। So, in the kingdom of heaven, और आसमान की बादशाही में now Jesus Christ, और अब यीशु मसीह, what he is saying, और वो क्या कह रहा है? he came to the world वो दुनिया में आया and he preached the kingdom message. और उसने बादशाही की मनादी की। As we listen from previous weeks और जैसा कि हम पिछले गुज़िश्ता हफ्तों में सीख चुके हैं concerning the series of the kingdom of God. और जैसे कि हम बादशाही की से मुतालिक जो हमारा टॉपिक चल रहा है But उसके today मुतालिक, I will talk about the keys. लेकिन आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो आसमानी बादशाही की कुंजी। Now listen, अब सुनिएगा, the kingdom of God और खुदा की बादशाही and or a kingdom of heaven. या फिर आसमान की बादशाही। Now Jesus is talking to his disciples. और अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं, I am giving you और मैं तुम्हें देता हूँ the key of heaven. आसमान की बादशाही की कुंजियां। So whatever you shall bind, और जो कुछ तू बांधेगा, whatever you shall bind और जो कुछ तू बांधेगा on this earth, इस जमीन पर, it will be bound in heaven. वो आसमान पर बंधेगा। What you lose और जो कुछ तू खोलेगा on this earth, इस जमीन पर, it will be loose in heaven. और वो आसमान पर खुलेगा। Hello, are we together? क्या आप मेरे साथ हैं? So disciples carry a key. और अब जो चाबियां हैं वो रसूलों के पास हैं। Now you can say he's directing to Peter. और अब आप कह सकते हैं कि वो पतरस के पास पहुंच चुकी, So he is directing to Peter. और- He is addressing to Peter. और अब वो पेश कर दी गई है पतरस को। Now Jesus is talking to one of his disciples called Peter. और अब यीशु मसीह अपने एक शागिर्द जिसको पतरस कहते हैं उससे बात कर रहे हैं। Now he says, अब I वो कह am रहे हैं, giving you the keys of the kingdom of God. और अब वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियां दी हैं। So now, first of all, before I start teaching you, और इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको समझाऊं, I just want you to know about what is the key. और इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कुंजी का मतलब समझ You लें। need to understand what is key. तो आप समझें कि चाबियां या कुंजियां क्या हैं What is key? और क्या है कुंजियां। Someone just keep sharing and just keep sharing and keep sharing. और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अपने अजीजों कारब को, रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को इस मैसेज को शेयर कीजिएगा Tell them we are alive. और उन्हें कहिए कि हम बराह रास्त हैं और इस मैसेज को सुनिए और बरकत हासिल कीजिए। Now just type a key. और अब लिखिएगा, टाइप कीजिएगा की या कुंजी या चाबी, So just type key. और लिखिएगा। Cool. Jesus replied, I'm reading from Matthew 16, verse number 17 to 19. और अभी हम मत्ती की अंजील के 16 बाब में 17 आयत से पढ़ेंगे। So I'm reading from 17, 18 and 19. और हम 17, 18, 19 आयत पढ़ेंगे। Jesus replied, और यीशु ने जवाब में उससे कहा, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. हालेलुया। Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। Amen. Now listen. सुनिएगा, If you own a house, और अगर आप मालिक है किसी घर के, if you don't carry a keys, और अगर आपके पास चाबी नहीं है, now listen, every house has a keys. और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक घर की कोई कुंजी है, Every car और has a key. हर एक कार की कोई ना कोई चाबी है।
Every institute carries a key और कोई भी अदारा वो चाबी रखता है to open the gate उस दरवाजे को खोलने के लिए, so that they can enter. ताकि वो दाखिल हो सके। So key carry the access point. और जो चाबी है वो पेश करती है एक खास पॉइंट को, So access. और ऐसा पॉइंट जिससे Entrance. आप दाखिल हो सके या रसाई हासिल कर सके। So if you carry a key, और अगर आपके पास चाबी है you have access. तो आपके पास रसाई है, So you can enter ताकि आप दाखिल हो सके into that house, उस घर के अंदर, into that building. और उस इमारत के अंदर। If you own a car और अगर आप अपनी कार रखते हैं and you don't have keys, लेकिन अगर आपके पास उसकी चाबी नहीं है, it is sure तो ये बात जाहिर है, that we believe you have this car और हमें ये तो पता है कि आप कार रखते हो and this is your car, we और know. ये आपकी है, ये हमें पता है। But लेकिन why you are not entering into your own car? क्यों आप अपनी उस कार में दाखिल नहीं हो सकते? There's a reason here. इसका एक कोई ना कोई मकसद है। You need a key तो आपको जरूरत है उस चाबी की to open a door कि आप उस दरवाजे को खोल सके, so that you can enter into it. ताकि आप उसमें दाखिल हो सके। It doesn't matter you have car, house and anything. और ये इस बात में ये कोई माने नहीं रखता कि आप कोई भी चीज पे मलकियत रखते हो। If you have keys, और अगर आपके पास चाबी है you can enter. तो आप दाखिल हो सकते हो। Let's suppose. अब ख्याल कीजिए, If you don't have key, और अगर आपके पास चाबी नहीं है how you will enter? तो फिर आप कैसे दाखिल होंगे? You will break the door तो आपको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, or you will break the lock और या फिर आपको उस ताले को तोड़ना पड़ेगा, or you will break the window, या फिर आपको उस खिड़की, उस जगह की खिड़की को तोड़ना पड़ेगा, then you will enter. तो फिर आप दाखिल होंगे। My dear, listen carefully. और मेरे प्यारो बहुत गौर से सुनिएगा, Why there are so much fight in these days? और क्यों आज के दौर में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, There's a reason here. और यहाँ पर इसकी वजह है। People want to take other people's position. और लोग चाहते हैं कि दूसरे की जगह को हासिल करें, People want the other people's what they own. They want they can take from them. और जो भी दूसरे किसी के पास कुछ अच्छा है वो चाहते हैं हम उनसे छीन लें। Why? क्यों? They don't have access key क्योंकि उनके पास रसाई वाली चाबी नहीं है, so that they can easily enter. ताकि वो उस जगह पे आसानी से रसाई हासिल कर सकें। That's why they are breaking you. और इसी वजह से वो आपको तोड़ रहे हैं, So that's why they are misleading you. और यही वजह है कि वो आपको मिसलीड कर रहे हैं, They are breaking your walls. और वो आपकी दीवारों को तोड़ रहे हैं, They are breaking your doors. वो आपके दरवाजों को तोड़ रहे हैं, So that's why they are breaking your connections. और आपके कनेक्शंस को तोड़ रहे हैं। I know I'm talking to right people. और मैं जानता हूं कि मैं बिल्कुल सही लोगों से बात कर रहा हूं, Because nowadays और क्योंकि आज के दिनों में the church is fighting with the church. क्योंकि एक चर्च दूसरे चर्च से लड़ रहा है। So in this verse, इस आयत में Jesus want to build a church, और यीशु मसीह चाह रहे हैं कि वो एक चर्च तामीर करें, but the church is fighting with the church. लेकिन आज के दौर में एक चर्च दूसरे चर्च से लड़ रहा है। We will talk later about the building and the church plantation. और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, चर्च और चर्च को बनाने के बारे I'm में। just talking about the keys. और अभी हम सिर्फ बात करेंगे कुंजियों के बारे में, Because they don't have the keys. क्योंकि वो चाबियां नहीं रखते, That's why they are fighting with those people. They carry a keys. और इसलिए वो उन लोगों से लड़ते हैं जो चाबियां रखते हैं। That's why the well-growing church, इसी वजह से जो बहुत अच्छा चलने वाला एक चर्च है, the people will stand against. और जो बढ़ने वाला चर्च है उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। Why? क्यों? They don't have the key to enter. क्योंकि उनके पास रसाई वाली कोई चाबी नहीं है। That's why they are breaking the doors. इसी वजह से वो दरवाजों को तोड़ रहे हैं, That's why they are breaking the windows. और इसी वजह से वो खिड़कियों को तोड़ रहे हैं, Even they are beating those people who carry the keys. और इसी वजह से वो उन लोगों को मारने पे उतर आए हैं जिनके पास वो चाबियां मौजूद हैं। I declare, और मैं बोलता हूँ आपकी जिंदगियों पर, any kind of attack, और किसी किस्म का भी अटैक अगर आपके ऊपर है, if you are facing, और अगर आज आप उसका सामना कर रहे हैं, it's because of the key you carry. और ये उस चाबी की वजह से है जो आप रखते हो। Listen carefully. बहुत एहतियात से सुनिएगा। Jesus said, यीशु ने कहा, the gates of Hades, आलम अरवा के दरवाजे, आलमे अरवा के दरवाजे, the gates of Hades और आलमे अरवा के दरवाजे shall not prevail on you, और तुझ पर बंद नहीं होंगे, shall not prevail on you. तुझ पर गालिब ना आए. तुझ पर गालिब ना आएंगे। So what is prevailing? तो इसका गालिब आने का मतलब क्या है? So Hades is a place of death. Hades is a place of death.
और वो मरने की जगह है। So what happened to Peter? और फिर वहां पर क्या हुआ पतरस के साथ? They put him into jail. और उन्होंने उसको जेल के अंदर डाल दिया। Now the people are waiting to die. और अब लोग इंतजार कर रहे हैं उसके मरने का। There people are waiting for the death of Peter. और वो इंतजार कर रहे हैं उसकी मौत का। Why? क्यों? Because Peter carry a key. क्योंकि वो उन चाबियों को उठाए हुए है। Because of the key Jesus given to Peter. और उन कुंजियों की वजह से जो यीशु मसीह ने अता की पतरस को, That's why he gave him a key. और इसी वजह से उसने वो चाबियां उसको अता की, So that the gate of hell or the gate of Hades shall not prevail. ताकि आलमेरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आ सके। So now the gates are prevailing. और यही वजह है कि वो दरवाजे, Now the gates are prevailing. और अब दरवाजे गालिब आ चुके हैं। Now the Peter is in the prison. और अब वो कैद के अंदर है। Now Peter is in the prison. और अब वो उस कैदखाना के अंदर है और वो कैदी है। Now people are waiting और अब लोग इंतजार कर रहे हैं। because they killed Jacob before. और इससे पहले उन्होंने याकूब को मार डाला। Sorry, they killed James. और इससे पहले उन्होंने याकूब को मार डाला। They just slaughter him with a sword. और उन्होंने तलवार से उसको कुर्बान कर डाला। In the 12th chapter of book of Acts. और इमाल उसके 12 बाब के अंदर। Now it's time of Peter. और अब है वक्त पतरस का। The man who carries a key. और वो शख्स जिसके पास वो कुंजियां हैं। So now the people are waiting of the death of Peter. और अब लोग इंतजार कर रहे हैं पतरस की मौत का। If you carry a key of the kingdom. और अगर आज आपने बादशाही की कुंजी उठाई है। If you carry a key. और अगर आज आपने वो कुंजी उठाई है। If you have that key. और अगर आपके पास वो चाबी है। No death shall prevail on you. तो कभी भी कोई मौत आप पर गालिब नहीं आ सकती। You will not die. आप नहीं मरोगे। Because you carry a key. क्योंकि आपने वो चाबी उठा रखी है। Hallelujah. हालेलुया। Because you carry the access gate. और क्योंकि आपने उस रसाई वाले दरवाजे को हासिल कर लिया है। Are we together? क्या मेरे साथ है? Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिएगा। So Peter carries a key. और पतरस के पास चाबियां हैं। Now they are about to kill him. और अब वो मरने के करीब है। They put him in prison. और उन्होंने उसको कैदखाने में डाल दिया है। Why? क्यों? So now they are waiting. और अब वो इंतजार कर रहे हैं। Now they are waiting और अब वो इंतजार कर रहे हैं to kill him. कि उसे मार डाले। So this is the promise of Jesus Christ और यह है यीशु मसीह का वादा to Peter. उस पतरस से I will build a church upon you. कि मैं तुझ पे एक कलीसिया तामीर करूंगा। Now listen. सुनिएगा। What is key? क्या है चाबी? Now what is key? और ये कुंजी क्या है? Key. कुंजी। So let me say this way, easy way. और मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। Everything on this earth. और हर एक चीज इस दुनिया में, Everything on this earth हर एक चीज इस दुनिया में has an access key. और उसकी कोई ना कोई रसाई की चाबी है। Has an access key. और वो अपनी रसाई की चाबी रखती है। There is an access key for the man's heart. और एक इंसान, एक किसी शख्स के दिल की भी रसाई की एक कुंजी है। There is a key to access a person's heart. और किसी भी इंसान के दिल की रसाई की एक कुंजी है। If you want to access someone's heart, और अगर आप किसी के दिल तक रसाई चाहते हो you need a key. तो आपको चाबी की जरूरत है। That key will show you the access, how you can access that person. और वो चाबी उस रसाई को बताती है कैसे आप उस तक रसाई हासिल कर सकते हो। You also need a key. और आपको इस चाबी की भी जरूरत है। What is the key to be a successful businessman? और एक कामयाब कारोबारी शख्स बनने की क्या कुंजी होगी? You also need a key और आपको इस चाबी की भी जरूरत है to ideas. कि आपको अच्छे ख्याल आ सके या आइडियाज आ सके। A good idea can make you rich. और आपको एक अच्छा ख्याल या आइडिया आपको अमीर बना सकता है। A good idea can make you more happier. और आपको एक अच्छा ख्याल या आइडिया आपको और ज्यादा खुशहाल बना सकता है। Now listen. सुनिएगा। Everything on this earth और हर एक चीज जो जमीन पर है carry a access key. और वो रखती है रसाई की चाबी। Hallelujah. हालेलुया। Key to vision. और चाबी देखने की। Key to vision. और चाबी देखने की। So Roya. So key of vision. और रोया देखने की चाबी। Many people have the vision. उनके पास और रोया है. और बहुत से लोग हैं जो रोया की कुदरत को रखते हैं। They have vision to do a lot of stuff. और उनको बहुत ज्यादा चीजों की रोया हासिल है। So they want to do the ministry, help to poor, help to do this, help to do that. They really want to do और वो a lot of stuff. मुख्तलिफ कामों में रोया रखते हैं कि वो अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, चर्च के लिए काम करें। मुख्तलिफ रोया उनके रूह के अंदर है। They have the vision to do a lot of stuff. और उनके पास रोया है कि वो बहुत ज्यादा काम करें। Why they are not doing? क्यों नहीं वो कर रहे? They miss the key. क्योंकि वो अपनी चाबी खो चुके हैं। They have the key. और उनके पास अगर चाबी है, They have the key.
और उनके पास चाबी है to fulfill the vision. कि उस रोया को पूरा कर सकें, If they carry it, और अगर वो उसको उठाएंगे they will fulfill it. तो वो उसको पूरा कर सकेंगे। That's why Jesus says, इसी वजह से यीशु ने कहा keys. कुंजियां, He is not saying a key. और उन्होंने सिर्फ एक कुंजी की बात नहीं की बल्कि लफ्ज इस्तेमाल किया कुंजियां। So it is not one key. और ये एक चाबी नहीं है, There are एक कुंजी keys नहीं in है, the kingdom of God. और खुदा की बादशाही में कुंजियां लफ्ज By इस्तेमाल the हुए। grace of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के फजल से, By the grace of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के फजल से I will teach you as many as I can about the keys. और मैं जितना हो सकता है उतना आपको सिखाऊंगा इन आसमानी चाबियों के बारे में। There are a lot of keys. और बहुत सी चाबियां हैं। The day you get the day you receive that key, और जिस दिन आपने उस कुंजी को हासिल कर लिया, now you get the thing तो आपने उस चीज को हासिल कर लिया to achieve your goal. ताकि आप अपने उस हासिल कर सके उस अपने मंसूबे को या अपने मकसद को। I declare in the name of Jesus और Christ, यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी जिंदगियों पर बोलता हूँ, let God give you the keys you are finding from years. और कितने भी सालों से आप जिन भी कुंजियों की तलाश में हैं, खुदावंद आपके लिए वो मुहैया करे। In the mighty name और of Jesus यीशु Christ. मसीह के कादर जलाली बाबरकत नाम In the में, name of Jesus और Christ. यीशु मसीह के नाम में। Now listen. सुनिएगा, Oh, Rabba Sekerebo Shandarabba. Now listen. सुनिएगा, In a simple way. और बहुत सादा अल्फाज में। What is key? क्या है चाबी? Simply, बहुत सादा। key is a secret. और चाबी एक राज है। Or let me say this way, key is a solution or a concept. और कुंजी एक हल है या एक तसव्वुर है। It's a concept or you can say a solution. और आप कह सकते हैं कि जो कुंजी है वो हल है या वो एक तसव्वुर है। So in a simple way, key is a secret. और बहुत सादा अल्फाज में हम कहेंगे कि जो कुंजी है वो एक राज है। Yeah, it's a secret. और वो एक राज है। It's a secret. और ये एक राज है। Every person carry a secret. और हर एक शख्स कोई ना कोई राज रखता है। So the day you get the secret, और जिस दिन आपने उस पोशीदा राज को पा लिया, in the kingdom of God, खुदा की बादशाही में there are mysteries and secrets. और बहुत ज्यादा मुकाशफात और राज की बातें हैं। So in a couple of minutes, और 2 मिनट में, in a couple of minutes, और 2 मिनट में we will see हम देखेंगे about the secret. उन राजों के बारे में। Makute berenongiada. Jesus Christ. Hallelujah. हालेलुया। Now listen. सुनिएगा, Every lock हर एक ताला carry a key. अपनी चाबी रखता है। If you have key, और अगर आपके पास चाबी है you will unlock it. तो फिर आप उसको खोल सकते हैं। There is a key और चाबी है to unlock खोलने की things. चीजों को, Things. चीजों को। Now listen. सुनिएगा, Every lock हर has a key. और हर एक ताले की कोई ना कोई चाबी है। Every lock has a key, my dear. और हर एक ताले की कोई ना कोई चाबी है। You can go from that side. Oh, Rabba Shandere Busakida. Oh, Branda Sekere Bushandara. So every lock carries a key. और हर एक ताला एक चाबी रखता है। You are not able to unlock a lock और आप इस काबिल नहीं है आप उस ताले को खोल सके unless you get a key. और उस वक्त तक जब तक कि आपके पास चाबी नहीं है। I have experienced. और मैं ये तजर्बा रखता हूँ। Every person has a access place. और हर एक शख्स की एक रसाई की जगह होती है। If you know the key of that person, और अगर आप उस शख्स की उस चाबी को, रसाई वाली जगह को जानते हैं, if you touch it, और अगर आपने उस नुक्ते को छू लिया, you get the access into that person's heart. और आपने उस शख्स के दिल तक रसाई हासिल कर ली। So
key to enter into God's kingdom. और खुदा की बादशाही में दाखिल होने की चाबी, That key's name is Daniel. और उस चाबी का नाम है दानियाल। No, नहीं, that key's name is so. और इस चाबी का नाम है, So. You can give any name. और आप कोई भी नाम दे सकते हैं। No, नहीं, the key to enter into God's kingdom. और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए Only one name. सिर्फ एक नाम, That name is Jesus. और जिसका नाम है So यीशु, Jesus is a key और यीशु मसीह वो चाबी है that will unlock you in the kingdom of God. जो कि आपको खोल कर लेकर जा सकती है खुदा की बादशाही में। That's why Jesus said very confidently, और यीशु मसीह ने बहुत एतमाद के साथ ये अल्फाज बोले, no man can enter into my Father's kingdom और कोई भी मेरे बाप के बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता until जब तक he believes in me. वो जब तक मुझ पर यकीन न He रखे। said, I am the way, truth and life. और उसने कहा राह और जिंदगी मैं हूँ। Now why he is saying I am the way? और क्यों वो कह रहा है कि मैं राह हूँ? Because every place carry a door. और हर एक जगह अपना दरवाजा रखती है, And Jesus says, I am the door. और इसीलिए यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूँ। Now he's saying if you want to enter, और अब वो कह रहा है कि अगर आप दाखिल होना चाहते हो, you need a door. आपको दरवाजे की जरूरत है, That door is me. और वो दरवाजा मैं हूँ। If you want to enter, और अगर आप दाखिल होना चाहते हो, key is me. और अब चाबी मैं हूँ। If those people who come through me और जितने लोग मेरे जरिए से दाखिल होना चाहते to my हैं Father, मेरे बाप तक, I am the key. और मैं हूँ वो चाबी, I am the true key. और मैं हूँ वो सच्ची कुंजी, I am the key of life. और मैं हूँ जिंदगी की कुंजी। So the entrance into the kingdom of और God खुदा की बादशाही में दाखिले का रास्ता, requires to believe in Jesus. और ये चाहता है कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखते Now हैं। listen. सुनिएगा, Maku se berenegedenia saha. Listen carefully. बहुत एहतियात से सुनिएगा। Every place carry a key. और हर एक जगह चाबी रखती है। So when Adam and Eve did sin, और जब आदम और हवा से गुनाह हुआ, now the place is locked. और अब जगह पे ताला लग गया, Now the people are securing the place. और अब लोग मौजूद हैं कि वो उस जगह की हिफाजत करें। Now the cherubims are there. और अब वहां पर फरिश्ते मौजूद हैं, Cherubims, और kerubi. करोबी फरिश्ते वहां The मौजूद हैं, cherubims are protecting the garden. और क्रोबी मौजूद है कि वो उसकी हिफाजत करें। If you see the tabernacle, और अगर आप टैबरनेकल को देखें, if you see the tabernacle, अगर आप हेमा इज्तिमा को देखें, the ark of the covenant, और उस वादे की जगह को, ahad ka sanduk, the ark of the covenant, और अहद के संदूक को, you see that place is covered by the curtains. और आप देखेंगे कि वो जो खास जगह है वो पर्दों से महफूज की गई है, Because the ark of the covenant is there. क्योंकि वहाँ हेमा इज्तिमा में खुदा का वादा मौजूद है, Yeah, the ark is there. और Ahad वहाँ ka पर sanduk. अहद का संदूक मौजूद है, And the glory of God is there. और खुदा का जलाल वहाँ मौजूद है, And it is covered by the veils. और वो पर्दों से उसको ढांपा गया है, And now it is covered. और अब वो ढांपा गया And the है। Bible says that God spoke to Moses, और कलाम कहता है कि खुदा ने मूसा से बात की, make cherubims on these curtains. और इन पर्दों पर करोबी बना। करोबी बना, Make cherubims. और इन पर्दों पर करोबी बना। So now you see in the garden, और अब आप देखेंगे बाग में, there was glory of God. और वहां पर खुदा का जलाल मौजूद है, When they did sin, और जब उन्होंने गुनाह किया now they are out of garden. तो अब वो बाहर हो गए And बाग God से, placed the same cherubims. और खुदा ने उन वहां पर खड़े कर दिए अपने करोबी फरिश्ते, Now the cherubims are protecting. और अब वो करोबी हिफाजत कर रहे हैं उस जगह की, Cherubims are protecting the garden. और अब बाग की हिफाजत हो रही है करोबी के जरिए। And now in the ark of covenant, और अब हेमा इज्तिमा में, in the not I'm talking about the ark of the covenant. Ahad ka sanduk. अहद के, और अब अहद के संदूक में, Now the place of ark of the covenant, और अब अहद के संदूक में, there is a place. और वहां पर जगह है The glory of God is there. जहां पर खुदा का जलाल मौजूद है। If the priest enter with sin, और अगर कोई भी प्रीस्ट वहां पर दाखिल होता है गुनाह के साथ, he die. और वो मर जाता है, And the Bible says he put ropes. और कलाम कहता है कि उन्होंने वो रस्सियां रखी, They put ropes और उन्होंने वो
They put ropes at the feet of the priest और उन्होंने वो रस्सियां बांधी होती थी उसके पांव के साथ, so that if he enter with sin, और अगर वो गुनाह के साथ दाखिल होता है तो, so if he dies, so that they can drag him out और अगर वो वहां पर जाकर मर जाता है तो वो रस्सियों को खींच के उसको बाहर निकाल सके, because he carry a sin. क्योंकि उसने गुनाह ज़दा था वो, Because that place carry cherubims, और क्योंकि वहां पर खुदा के करोबी मौजूद थे, so they can see the sinful person. और अगर वो देखेंगे किसी गुनाह आलूदा शख्स को They will kill on the तो वो spot मार देंगे उसी जगह पर, because they are securing the gate. और क्योंकि वो उस गेट की हिफाजत के लिए है, So the key is the blood. और वो चाबी है वो लहू, So if they carry the blood और अगर उन्होंने वो खून पहना है of the repentance, और अपनी माफी का, so if they enter, no cherubim will kill them तो फिर वो दाखिल होंगे लेकिन कोई करोबी उन्हें नहीं मारेगा, because cherubim were protecting that place. क्योंकि वहां पर हिफाजत के लिए मौजूद है करोबी, So there is a key to enter that place. और वहां पर चाबी है दाखिल होने के लिए। When Jesus died और जब यीशु मसीह मर गए on the cross, और क्रॉस सलीब पर, we saw that veil open तो फिर हम देखते हैं कि वो पर्दा फट गया, in two sides. दो हिस्सों में तकसीम हो Now गया, there is no cherubims. और अब कोई करोबी ना रहा, Now there is no protection. और वहां पर कोई हिफाजत ना रही, Now there is no protection और वहां पर कोई हिफाजत ना रही, because the blood of Jesus is shedded. क्योंकि यीशु मसीह का खून वहां मौजूद था, Now the blood of Jesus is shedded. और बहा दिया गया यीशु मसीह का खून, Because whosoever believe in Jesus, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, when whosoever believe on the blood of Jesus Christ, और जो कोई यीशु मसीह के खून पर ईमान लाएगा, when they receive Jesus, और जब वो यीशु मसीह को लेगा, now they carry the blood of और Jesus. अब उसने पहन लिया यीशु मसीह का लहू, Now they can enter और अब वो दाखिल हो गए into the glory of God. और खुदा के जलाल में दाखिल हो In the गए, glory of God. और खुदा के जलाल में दाखिल The हो गए, same glory और वही जलाल that they were because of sin, God put them out. और गुनाह की वजह से खुदा ने उन्हें बाहर बागेदन से निकाल दिया, God took them and placed them out. और खुदा ने उन्हें उठाया और उस जगह से बाहर निकाल दिया। Why? क्यों? Because of sin. गुनाह की वजह से। Now Jesus paid the price. और अब यीशु मसीह को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, And now he died. और अब वो मर गया। So now listen carefully. और बहुत एहतियात से सुनिएगा। If you want to enter into the kingdom of God, और अगर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, you need a Jesus और आपको यीशु की जरूरत है to believe in him. कि आप उस पर ईमान रखें। Now you are entered. और अब आप दाखिल होंगे। If you want to enter into the glory of God, और अगर आप दाखिल होंगे खुदा के जलाल में, if you want to enter into the glory of God, और अगर आप खुदा के जलाल में दाखिल होना चाहते to हैं, receive the same glory और आप उसी जलाल को हासिल करना चाहते हैं, that you were carrying before the foundation of the world, और इस दुनिया की बुनियाद से पहले जो जलाल मौजूद था, you need a second key. और आपको दूसरी चाबी की जरूरत है, That is the blood of Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह का खून। The day you receive the blood of और Jesus जिस दिन आपने यीशु मसीह के खून को हासिल कर लिया on your life, आपकी जिंदगियों पर, you can easily enter into the तो glory of आप God. बहुत आसानी से यीशु खुदा के जलाल में दाखिल हो As सकते I हैं। said, जैसे कि मैंने कहा, need a keys. जरूरत है चाबियों की। Hallelujah. Hallelujah. Because the kingdom of God क्योंकि- carries a keys. क्योंकि खुदा की बादशाही चाबियां रखती है। Share this to somebody. और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, Share the keys. और इन चाबियों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, Share the keys. Share this to everybody. और जितने लोगों को आप जानते हैं आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। Now listen, सुनिएगा, I did not reach there. I never share only. I'm just introducing you about the key. और मैं सिर्फ इन कुंजियों के बारे में आपको तारुफ करवा रहा हूँ। Till now, I did not share the first key yet. और अभी तक मैंने पहली चाबी को मुतारिफ नहीं करवाया, Not yet. अभी तक नहीं, Because we just opened the verse और सिर्फ हमने आयत को खोला है to understand. सिर्फ समझने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Praise be the name of Lord. खुदावंद की तारीफ हो। Hallelujah. हालेलुया। So now the key is a secret. और अब है ये कुंजियां राज, As I said, the key is a secret. और जैसे कि मैंने कहा कि ये चाबियां राज रखती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. सुनिएगा, Now key represents something. और अब चाबियां किसी चीज को पेश कर रही हैं। Let's open the book of Isaiah, chapter 22, verse number 22.
और अब हम खोलेंगे यशायाह उसका 22 बाब और उसकी 22 आयत। Let's read book of Isaiah chapter 22 verse 22. यशायाह 22 बाब उसकी 22 आयत। Oh, hallelujah. I will place on his shoulders the key to the house of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। आमीन। Now listen, सुनिएगा, this is a prophet of God और ये है खुदा का नबी called Isaiah. जिसको कहते हैं यशायाह। Now he is giving a prophetic word और अब वो नबूवती अल्फाज दे रहा है, that there is a key of David. और यहाँ पर दाऊद के घर की कुंजी है। As I read in the book of Revelation chapter 3 verse 7. और जैसे कि मैंने मुकाशवा उसका 3 बाब उसकी 17 आयत में बयान किया था, So as he carried the key of David, और जैसे कि दाऊद की कुंजी उनके पास थी, that is Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह, Now Isaiah is prophesying the same thing और वही चीज को नबूवती तौर पर यशायाह बयान कर रहा है, about the key. और उसी कुंजी के बारे में, And the same thing he write on it. और बिल्कुल वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है। So now he says, look at this. और अब देखिए हम What पढ़ते हैं, he opens, no one can shut, and what he shut, no one can open. बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। What is this? ये क्या है? The same thing it is written in the book of Revelation. और मुकाशवा में जो लिखा है वही बिल्कुल वैसे ही अल्फाज यशायाह में लिखे हैं। The thing prophet said, और जो कुछ नबी ने कहा, it revealed. और ये जाहिर करता है, It revealed when और Jesus came. और ये सब पूरा हो गया जब यीशु मसीह दुनिया में आए। So the key carry the same key. और वही चाबी The Isaiah is talking about. जिसके बारे में यशायाह नबी बात कर रहे हैं, That's the key. और वही वो कुंजी है, Jesus carry. और जिसको यीशु मसीह लिए Now हुए he's हैं, giving to the apostles. और अब वही कुंजी है जो उसने अपने रसूलों को दे दी। So now listen. सुनिएगा, Now listen. सुनिएगा, Key represent और चाबी जाहिर करती है, symbolically. और निशानी तौर पर, Yeah, symbolically. और निशानी तौर पर, इशारतन. इशारतन, Symbolically. और इशारतन ये जाहिर करती है, It says something. और ये कुछ कह रही है, The key represents. और चाबी जाहिर करती है, Key represents और कुंजी जाहिर करती है ownership, और इख्तियार को, power and authority मलकियत को, ताकत को, over the place, और उस जगह पर, over the territory, और उस इलाके पर। You need to understand. और आपको जरूरत है समझने की, Now the same key of David और वही दाऊद की जो कुंजी है that the prophet Isaiah is speaking about. और जिसके बारे में यशायाह बात कर रहा है, Now Jesus came. और यीशु मसीह आए हैं, The same key. और वही कुंजी, Now he's talking to Peter. और अब वो बात कर रहे हैं पतरस से, Now he is saying, I am giving you the key of kingdom. और अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बादशाही की, आसमान की बादशाही की कुंजी देता हूँ। As I share with you, जैसे कि मैंने आपसे इस कलाम को बांटा, as I share this thing with you. और जैसे कि मैंने ये चीज आपके साथ बांटी, So the Bible says, first seek the kingdom of God और कलाम में लिखा है कि पहले उसकी बादशाही की तलाश करो and the righteousness of God. और खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो, The all things will be added to you. तो तमाम चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। What does it mean? तो इसका मतलब क्या हुआ? Because every kingdom carries a key. और हर एक बादशाही चाबियां रखती है। Why you are not receiving? क्यों आज आप हासिल नहीं कर पा रहे? Because there is a key is missing. क्योंकि कोई ना कोई कुंजी वहां से खो गई है, You are staying out. और आप बाहर निकल चुके हैं उससे, Or you are staying out. और आप अभी भी सफर में हैं, You are staying outside. और आप खड़े हैं बाहर की तरफ, And you are still. और अभी तक आप खड़े Waiting हैं, for answers. और आप बाहर की तरफ खड़े हैं, और अभी तक उस आप जवाब का इंतजार कर My रहे dear, हैं। you need a key. और मेरे प्यारो, आपको जरूरत है आज उस कुंजी You की, need a key. और आज जरूरत है आपको उस कुंजी की, Because you are also a part of the kingdom of God. क्योंकि आप भी खुदा की बादशाही का एक हिस्सा हैं। So if you are a part of kingdom of God. और अगर आप खुदा की बादशाही का हिस्सा हैं, And now listen.
सुनिएगा, you need a key. तो आपको जरूरत है आज उस कुंजी की। So listen. सुनिएगा, So Jesus carries a higher authority. और क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत आला इख्तियार अपने पास रखा है, So now so the Bible says the key of David. और कलाम कहता है कि दाऊद की कुंजी, Now Jesus carry a key of David. और यीशु मसीह के पास दाऊद की कुंजी है। Listen, I'm talking about one key. और मैंने सिर्फ एक कुंजी के बारे में बात की, The key of David. दाऊद की कुंजी। But Jesus is giving the more keys to Peter. लेकिन यीशु मसीह एक से ज्यादा कुंजियां दे रहे हैं पतरस को, So he's not talking about one key. और लेकिन वो एक कुंजी के बारे में बात नहीं कर But रहे, he says keys. और वो कह रहे हैं आसमान की बादशाही की कुंजियां। So now there is no one key. और यहाँ पर एक कुंजी की बात नहीं हुई। So there is key. चाबी आएगा. So keys means कुंजियां. Now listen, there is one key. और एक चाबी है, So the key of David. और दाऊद की जो चाबी है, The Isaiah says it's given to Jesus Christ और यशायाह कहता है कि वो यीशु मसीह को दी गई on है, his shoulder. जो कि उसके कंधे पर है। Now what is shoulder? और क्या है वो कंधा? Shoulder represents responsibility. और कंधा यहाँ पर आपकी जिम्मेदारियों को जाहिर कर रहा But है। the Bible says that the kingdom shall place on his shoulder. और कलाम सल्तनत कहता है उसके- कि सल्तनत उसके कांधे पर होगी। Hallelujah. हालेलुया। So the same prophet is prophesying about Jesus और Christ. वही ये नबी है जो कि यीशु मसीह के बारे में नबूवत कर रहा है, So he carries the same key. और उसने वही चाबी अपने कंधों पर उठाई है। That's why when they crucified Jesus Christ, और इसी वजह से जब उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब किया, what they said, क्या कहा उन्होंने? are you a king of Jews? क्या है तू यहूदियों का बादशाह? Because they understand, क्योंकि वो समझ रखते थे, according to scriptures, और कलाम के मुताबिक, the Jews are waiting for the king. क्योंकि यहूदी उस वक्त इंतजार कर रहे थे अपने बादशाह का। And the Bible says, और कलाम कहता है, Jesus carried the key of David. और यीशु मसीह दाऊद की कुंजी लिए हुए हैं, Key represents और यहाँ पर चाबी जाहिर करती है power, ताकत को, authority, इख्तियार को, the same thing. और दोनों एक जैसे। Hallelujah. हालेलुया। So now listen, let's go more further. और आए हम और ज्यादा सीखते हैं। Hallelujah. Are you Hallelujah. listening? Some क्या आप those who सुन रहे are हैं? watching me live, और keep sharing. जितने लोग भी मुझे बराह रास्त देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। I know you need to revise this message one more time. और आपको इस मैसेज को एक दफा फिर से सुनने की जरूरत है, I understand it. और मैं समझता हूँ, It's deeper than that. और ये बहुत ज्यादा गहरा कलाम है आज It's का, more deep. और बहुत ज्यादा गहरा है। It's not just information. और ये सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन या कोई मालूमाती काम नहीं है, That's something in the realms. और ये है कुछ आलम में की हुई बात। Hallelujah. हालेलुया। Kora basendere bushaka daraba. Hallelujah. हालेलुया। Keep sharing this. और ज्यादा से ज्यादा इस कलाम को शेयर कीजिएगा, Keep sharing this. ज्यादा से ज्यादा इस कलाम को शेयर कीजिएगा। Now let's go further. हम आगे बढ़ेंगे। Baros ke terabadia. So the first key I'm going to share with you. और पहली चाबी जो मैं आपसे बांटने वाला हूँ, That key will surely help you. और ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। Praise be the name of Lord. खुदा की तारीफ हो। Makuro bodhika daraba. Let's open the Bible, Luke chapter 8 verse 12. लूका की अंजीर Chapter 8 verse 12. Luke chapter 8 verse 12. Just give me a second. Kurabashikere busandaraba. Ukalabashendere busakida. Get ready for the key. और उस चाबी के लिए तैयार हो जाएं, I'm just gonna share with you जो the कि मैं first आपके key. साथ बांटने वाला हूँ। पहली चाबी, Makotorobushiketerebu. Luke chapter 8 verse number 17. और 17 आयत।
Luke 8 verse 17. लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। For nothing is secret क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी Hallelujah. और ज़हूर में ना आएगी। Why the things are not manifesting? क्यों चीजें ज़हूर में नहीं आ रही? Because the key is missing. क्योंकि चाबी नहीं है। What this verse is saying? और ये कलाम की आयत हमें क्या समझा रही है? Read one more time. एक दफा हम फिर पढ़ेंगे। Read one more time. एक दफा हम फिर पढ़ेंगे। Yes, read. क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी और ज़हूर में ना आएगी। So nothing is hidden now. और कोई भी चीज छुपी नहीं है। So if it is hidden, और अगर ये छुपी है, if it is hidden, और अगर ये छुपी है, need to be known, तो जरूरत है कि इसको जाहिर किया जाए need to be unveiled. और जरूरत है कि इसको बेपर्दा किया जाए। Let's read one more time the same scripture. और हम एक दफा फिर से इस आयत को पढ़ेंगे। The Matthew 1. और मत्ती Matthew की 16 and 16. मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 16 आयत। So now we are reading from 16:16. और अब हम 16 बाब उसकी 16 आयत पढ़ेंगे Let's see what happens here. और देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है। Let's read. Matthew 16:16. The Bible says, और कलाम कहता है, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। And Jesus answered और यीशु ने जवाब में कहा and said unto him, और उससे कहा, Blessed thou art thou, Simon Barjona, for the flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान है तुझ पर जाहिर की। Revealed. तुझ पर जाहिर की। Revealed. और तुझ पर जाहिर की। So the things need to be revealed. और वो चीजें जिनको जाहिर होना जरूरी है, The things need to be revealed. और वो चीजें जो जिनको जाहिर होने की जरूरत है, The things need to be revealed. और वो चीजें जिनको जाहिर होने की So जरूरत now है। Jesus is speaking to Peter और अब यीशु मसीह बात कर रहे हैं पतरस से concerning this thing revealed by my Father. और इस बारे में बात हो रही है कि जो जाहिर होंगी चीजें मेरे बाप के जरिया से। So Jesus said something very deep. और यीशु मसीह ने बहुत गहरी बात की। What does word reveal mean? और यहाँ पर क्या है जाहिर का मतलब? Word reveal means और क्या है जाहिर का मतलब? unveil. और इसका मतलब है Unveil. उसको I पोशीदगी से नापोशीदा करना। already write that. It means unveil. और इसका मतलब है पर्दे को हटाना। So it means uncovering. और इसका मतलब है निगाह करना। Uncovering. नंगा करना. The word reveals mean uncovering. और लफ्ज रिवील का मतलब है नंगा। लफ्ज जाहिर होने को कहते हैं नंगा करना। Uncover, नंगा करना। Uncover, नंगा करना। Removal of the veil. और पर्दे का हटाना। Removal of the veil. और पर्दे का हटाना। That's mean reveal. और इसका मतलब है जाहिर करना। It's mean reveal. और इसका मतलब है जाहिर करना। So now, and one more thing, a disclose of what was previously unknown. The third meaning of reveal. और जो तीसरा मतलब है रिवील का वो है ऐसी बात का इंकशाफ जो पहले मालूम ना थी। The thing. और वो चीज, or you can say a disclosure of what was previously unknown. और आप ये भी कह सकते हैं ऐसी बात का इंकशाफ जो आपको पहले मालूम ना थी। That's why most of the people, इसी वजह से बहुत से लोग they don't understand Jesus. यीशु मसीह के बारे में इल्म नहीं रखते।
Hello? Are you with me? क्या मेरे साथ है? Now listen. सुनिएगा। Revelation of God और खुदा का मुकाशफा revealed in Jesus यीशु मसीह में जाहिर होता है when he came to the world. जब वो दुनिया में आया, It revealed. और वो जाहिर करता है, People see God और लोगों ने खुदा को देखा face to face. और आमने सामने, They saw the great works of God. और उन्होंने खुदा के अजीम काम को देखा, They saw a great work और of God. उन्होंने खुदा के अजीम काम को देखा। How? कैसे? Because of revelation. और सिर्फ इस मुकाशफा से, Because the God became flesh. क्योंकि खुदा इंसान बन के दुनिया में आया जिस्म लेकर, And the word became flesh. और कलाम अल्फाज कलाम मुजस्सम हुआ, And he manifests the glory. और फिर वो जाहिर हुआ जलाल में। Are we together? क्या मेरे साथ है? Now this is a serious point now. और बहुत एक सीरियस पॉइंट की तरफ हम जाने वाले हैं, Keep listening. और सुनते रहिए, Keep listening. सुनते रहिए। Now we are close और अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, to get a secret. और हम एक राज की तरफ पहुंच चुके हैं। So listen. सुनिएगा। Matthew 16:16. और मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 16 आयत। Now Jesus said, "Blessed art thou, और यीशु मसीह ने कहा, Simon Bar-Jonah, for the flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, thou shalt, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church." Next verse. "And the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the key of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever shall loose on earth shall be loosed in heaven." यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझसे जाहिर की। और मैं तुझसे ये कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा के दरवाजे इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। Now listen. सुनिएगा। Who is Simon? और कौन है शमौन? Who is Simon? कौन है शमौन? The word Simon means a reed. और जो लफ्ज शमौन है उसका मतलब है सरकंडा। Who is Simon? और कौन है शमौन? He is a reed. और वो है एक सरकंडा। The word Simon means reed. और शमौन का मतलब है सरकंडा। So what is reed? क्या है सरकंडा? A reed is a very fragile. और आप कह सकते हैं कि बहुत आसानी से टूट जाने वाली चीज। So the reed is a thing. और जो सरकंडा है वो ऐसी चीज है, Is a kind of agriculture thing. और आप कह सकते हैं कि इसको काश्तकारी वाला कोई चीज है। सरकंडा जिसे कहेंगे। You can say like a plant. और आप इसको किसी पौधे से भी तशबीह दे सकते हैं, Like a grass. और आप घास से भी तशबीह दे सकते हैं। If the sun arrives और जैसे ही सूरज तलू होता है by the heat, और उस गर्मी से, easily it can destroy it. और जो बहुत आसानी से खत्म हो जाए ऐसा पौधा। I'm giving you example in this sense. और मैं आपको इस हवाले से समझा रहा हूँ। What is reed? और क्या है सरकंडा? It's a reed is very fragile and easily blown out by the wind. और हवा से या तेज रोशनी से बहुत से आसानी से टूट जाने वाली चीज। So the Simon means the person can easily shakeable. और आप कह सकते हैं कि शमौन का मतलब है कि बहुत आसानी से हिल जाने वाला शख्स। Easily. बहुत आसानी से। Easily. बहुत आसानी से। So what Jesus did? और यीशु मसीह ने क्या किया? He said, now you are not Simon. और अब उसने कहा कि अब से तू शमौन नहीं, You are Peter. और अब तू पतरस कहलाएगा। Why he changed the name? क्यों उसने उसका नाम तब्दील किया? Why he changed the name? क्यों उसने उसका नाम तब्दील किया? Because Simon revealed Jesus. क्योंकि जो शमौन है उसने जाहिर किया
यीशु मसीह को। Now Jesus is asking a question to his disciples. और अब यीशु मसीह ने एक सवाल रखा अपने शागिर्दों पर। Now read from verse 13. और अब 13 आयत से हम पढ़ेंगे। Read from verse 13. 13 आयत से हम पढ़ेंगे Read from verse 13. और फिर हम पढ़ेंगे मत्ती 16 उसकी 13 आयत से। Now we are going just behind. और हम बिल्कुल इसके When पीछे Jesus हैं। came unto the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I am the Son of Man am? And they said, Some say that thou art the John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Just verse 13. Please read. जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई। Now listen. सुनिएगा। Now Jesus is asking a question. और यीशु मसीह ने एक सवाल उठाया है, Who am I? कौन हूं मैं? Who am I? कौन हूं मैं? Now Peter revealed who is Jesus. और अब यहाँ पर जाहिर किया है जिसने, वो है पतरस। I already shared the word revealed me. और मैं पहले ही आपसे पतरस का जो मतलब है वो बता चुका हूँ I आपको। already shared with you the word revealed mean. और जाहिर का मतलब मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। Revealed mean uncovering. और रिवील का मतलब है नंगा बेपर्दा करना करना। या बेपर्दा करना। Uncovering. और बेपर्दा करना। So now Peter uncovered Jesus. और अब यीशु मसीह से पर्दा हटाया पतरस ने। So who exactly he is? और कौन है हकीकतन? Who is Jesus? कौन है हकीकतन यीशु? Now Peter say you are the son of God. और अब पतरस कह रहा है तू खुदा का बेटा है। Now he says thou art the Christ, the son of God. और उसने कहा कि तो शमौन जिंदा खुदा- पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। Thou art the son of living God. और ये शमौन ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। How he says this? कैसे उसने ये कहा? Because the Father reveals. क्योंकि उस पर बाप ने जाहिर किया। What is this? क्या है ये? So the first key और पहली चाबी I'm going to share with you जो कि मैं आपसे बांटने वाला हूँ, is a revelation. और वो है मुकाशफा। Revelation is a key. और मुकाशफा है एक चाबी। Revelation is a key. और मुकाशफा है एक चाबी। So if you carry a revelation of something, और अगर आप किसी चीज के मुकाशफे को हासिल कर लेते हैं, now you will be built upon something. और अब आप किसी चीज के ऊपर तामीर कर सकते हैं। Because this revelation is given unto Peter. क्योंकि ये मुकाशफा पतरस को दिया गया। So the revelation of Jesus is given to Peter. और अब यीशु मसीह का ये मुकाशफा पतरस को दिया गया। Now revelation is given to Peter. और अब दिया गया ये मुकाशफा पतरस को। Now Jesus is building a church on Peter. और अब वो जो कलीसिया तामीर हो रही है वो भी पतरस पर हो रही है। The first key of the kingdom of God is a revelation. और पहली चाबी जो खुदा की बादशाही की है वो है मुकाशफा। The day God reveals things to you, और जिस दिन खुदा आप पर चीजें जाहिर करता है, you already received the key, और आपको वो चाबी मिलना शुरू हो the जाती है। keys of revelation. और वो मुकाशफात की चाबियां। So God revealed to Peter, और खुदा ने जाहिर किया पतरस पर, Father revealed to Peter, और बाप ने जाहिर किया पतरस पर, not by blood and flesh. और खून और गोश्त से नहीं, It is by God. और ये खुदा की तरफ से So हुआ। God revealed और खुदा ने जाहिर किया to Peter, पतरस पर, he is the son of the living God. और वो है बेटा जिंदा खुदा का। So now अब Jesus changed his name और यीशु मसीह अब उसका नाम बदल रहे हैं, from Simon और अब उसका शमौन से नाम to Peter. पतरस हो रहा है। Why from Simon to Peter? क्यों शमौन से पतरस हो रहा है? Why from Simon to Peter? क्यों उसका नाम शमौन से पतरस हो रहा है? Why from Saul to Paul? क्यों उसका नाम साउल से पौलुस रखा जा रहा है? Why from Abram to Abraham? क्यों उसका नाम इब्राहिम से इब्राहिम Because रखा जा in रहा the है? kingdom of God, क्योंकि खुदा की बादशाही में revelation is a key. और मुकाशफा एक चाबी है। The day revelation opens to you, और जिस दिन वो मुकाशफा कोई भी आप पर खुल जाता है, the time of building is started. तो फिर तामीर का वक्त शुरू होता है। And Jesus said, when he reveals that और- Jesus is the son of the living और God, जब उसने जाहिर किया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, what happens तो next? फिर वहां पर क्या हुआ? He says, now you're not a Simon. और उसने कहा कि तू अब से
शमौन नहीं है You are not Simon. और तू शमौन नहीं Now है you are Peter. और अब तू पतरस है I will build a church upon you, और मैं तुझ पर कलीसिया तामीर करूंगा and the gate of hell shall not prevail on you. और कोई भी दरवाजा तुझ पर बंद नहीं होगा। You need to understand, my dear. आपको समझने की जरूरत है मेरे प्यारो। There is a Simon and there is a Peter. और वहां पर शमौन भी मौजूद है और पतरस भी। In the whole Bible, और पूरी कलाम मुकद्दस में Jesus communicates with his disciple Simon Peter with the name called Peter. और ये पूरी कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने मुखातब किया है पतरस से और शमौन से। God called Peter with the phrase called Peter. और यीशु मसीह ने मुखातब किया पतरस को पतरस से, शमौन से नहीं. हमेशा पतरस कहकर मुखातब किया। In the whole Bible, और पूरे कलाम मुकद्दस में after changing the name, और नाम तब्दील करने के बाद Jesus called him Peter. और यीशु मसीह ने हमेशा उसे पतरस कह के पुकारा। But let's see in the last times. और लेकिन देखें आप आखिरी वक्त में Let's see what happens. देखते हैं हम क्या हुआ। Let's see what happens. क्या हुआ देखते हैं, We will see later. हम बाद में देखेंगे। Just hold on. Just keep in mind और the question of Jesus Christ. और जहन में रखिएगा इस सवाल को, यीशु मसीह के बारे में जो पूछा गया। What he said. क्या कहा गया? Who do people say the Son of Man is? और उसने कहा कि लोग क्या कहते हैं? शमौन ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 16:13, Matthew 16:13. Just keep this verse in your mind. और सिर्फ ये सवाल अपने जहन में रखें कि उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। So this is the question. और ये सवाल है कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। What do people say the Son of Man is? अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। I am opening one more revelation. और एक और मुकाशफा आपके सामने खुलने वाला है। How Peter revealed God. कैसे उसने जाना खुदा को। How Peter received the revelation. और कैसे उसने इस मुकाशफे को रिसीव किया। How Peter received revelation of Jesus Christ. और यीशु मसीह के इस मुकाशफे को कैसे उसने पाया। How? कैसे? Nobody knows कोई नहीं जानता था that he is a son of the living कि God. वो है जिंदा खुदा का बेटा मसीह। How Peter saw it. कैसे पतरस ने ये चीज देख ली। Now listen, my dear. सुनिएगा मेरे प्यारो। Question as a answer. और सवाल के अंदर ही जवाब है। Question as a answer. और सवाल जाहिर हो रहा है जवाब के तौर पर। सवाल जवाब की तरह. Question as a answer. और सवाल जवाब की तरह। Question as a answer. और सवाल जवाब की तरह। Someone type question as an answer. और लिखिएगा सवाल जवाब की तरह। Question as an answer. सवाल जवाब की तरह। If you want to receive a revelational key. और अगर आपको मुकाशफाती कुंजियां चाहिए। Thank you, Jesus. I am opening to you. Receive it और now. मैं अभी आप पे खोलने वाला हूँ, इसे मौसूल कीजिए Take यीशु के नाम में। question as an answer. और सवाल जवाब की तरह लीजिए। Take question as an answer. और सवाल जवाब की तरह लीजिए। Read this question one more time. और एक दफा फिर इस सवाल को पढ़ें आप। Jesus said, who do people say the Son of Man is? और अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। Son of Man. सन ऑफ मैन इब्ने आदम। Son of Man. सन ऑफ मैन इब्ने आदम। Son of Man. इब्ने आदम। This is a question. और यह है सवाल। And there is an answer in this question. और इसी के अंदर जवाब है। The Peter saw. और पतरस ने देखा। He is not a son of man. और ये तो किसी आदमी का बेटा नहीं लगता। Because he born from a Shakatari Bahar. Because he is born from a virgin. क्योंकि एक कुंवारी से पैदा हुआ He है। is not son of man. ये तो आदमी का बच्चा नहीं हो He सकता। born from the Holy Spirit. और ये पैदा हुआ है पाकरू से। He is not son of man. ये इंसान का बेटा नहीं है। Indeed. और बेशक. बेशक Indeed. बेशक He is the son of the living God. और ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। He is the Christ. और ये है यीशु मसीह। The son of the living God. और ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। What is this? ये क्या है? This is the equation of revelation. और ये है मुकाशफा। यह है मुकाशफे का हिसाब. Equation of revelation. और ये है मुकाशफे का हिसाब। What is that equation? और फिर क्या हिसाब है इसका? Question as an answer. और सवाल जवाब की तरह। My Jesus और मेरा यीशु asked question in answer. और वो उसने सवाल को भी एक जवाब की तरह पूछा। Hey, listen to me. He gave an answer in the question. और उसने उसी सवाल के अंदर जवाब दिया। So that's why he says
nothing is hidden now. और इसी वजह से उसने कहा अब कुछ भी पोशीदा ना रहा। When Jesus came, he revealed everything. और जब यीशु मसीह आए उसने हर चीज जाहिर कर दी। The people in darkness saw a great light. और जितने लोग तारीकी में बैठे थे उन्होंने अजीम रोशनी को देखा। What is this? ये क्या है? Jesus asked a question. और यीशु मसीह ने सवाल पूछा। Who do people say लोग क्या कहते हैं? the Son of Man is? इब्ने आदम। So now the Son of Man is. और अब इब्ने आदम। Who is the Son of Man is? और कौन है इब्ने आदम? What does it mean? क्या है इसका मतलब? There is a question और एक सवाल है as an answer. जवाब में। Now everybody is saying you are this, you are this, you are this, and you are this. और अब हर कोई कह सकता है कि तू ये है या ये है या ये है। But Peter was very clever. लेकिन पतरस यहाँ पर बहुत होशियार है। He did not put his ears to people. उसने लोगों की तरफ अपने कान नहीं लगाए। Not what the people are saying. और उसने ये नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं। He just observed what that Jesus is saying. और उसने इस चीज का मुशाहिदा किया कि यीशु मसीह के अल्फाज क्या हैं। He understand the question. और उसको समझ आ गई उस सवाल की। The day you understand the original question of God, there is an answer in the question. और जिस दिन आपने खुदा के सवालात को बागौर पढ़ लिया और उसकी समझ कर लिया, आप जवाब आपको मिल जाएगा। The day you, because a makuse pereniaha, if God speak to you today, और आज अगर खुदा आपसे बात करे so like this, बिल्कुल इस तरह, is it possible you will become a great man? ये मुमकिन है कि तुम एक अजीम शख्स बनो? This is a question from God. ये खुदा की तरफ से सवाल हो। If there is a question, और अगर ये सवाल हो is it possible to you? Is it possible for you to you become a great man? कि क्या ये तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम एक अजीम शख्स बन जाओ? What is this? ये क्या है? For people there is a question, और लोगों के लिए तो ये एक सवाल है, but for me it's an answer. लेकिन मेरे लिए एक जवाब है। The God is saying, I am able to become a great man. और इसका मतलब है कि खुदा जानता है कि मैं एक अजीम शख्स बनने की अहलियत रखता Now हूँ। Jesus said to one sick people, और यीशु मसीह एक बीमार शख्स को कह रहे हैं। He says, Lord, if you are willing to heal me, I will receive healing. और वो कह रहा है कि अगर खुदा तू चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। And Jesus says, और यीशु ने कहा, are you willing to receive healing? क्या तू इस बात पे आमादा है कि तुझे शिफा मिले? So this is a question and answer also. और इसी में सवाल के अंदर जवाब है। That's a revelation. और ये है मुकाशफा। Are you willing to receive healing? So it's mean there is a willingness to receive healing. और क्या तू इस बात पर आमादा है कि तुझे शिफा दी जाए? तो जो पहला लफ्ज है, क्या तू इस बात पर यकीन रखता है या आमादा है? So there इसमें is a जवाब मौजूद है। question as an answer. और सवाल के अंदर ही जवाब है। Hallelujah. So that is called a revelation. और इसको हम कहेंगे मुकाशफा। There is an answer in the question. और सवाल के अंदर ही जवाब है। What does it mean? क्या है इसका मतलब? Hallelujah. हालेलुया। I'm still there. और मैं वहीं पर मौजूद हूँ। Simon and Peter. और पतरस और शमौन और पतरस पर। People talk about Peter. और लोग बात कर रहे हैं पतरस के बारे में। Many preachers they preach और बहुत से तबलीग करने वाले इस बात में तालीम देते हैं that Peter revealed Jesus. कि पतरस ने यीशु मसीह को जाहिर किया। That God revealed to him and he just said it. और उसने खुदा ने उस पर जाहिर किया और उसने फिर ये जाहिर किया लोगों पर। While I was praying and understanding, और जब मैं दुआ कर रहा था और इसको समझ रहा था, I just understand the question. और मैंने इस सवाल को समझा। Because if you want to know the answer, और अगर आप चाहते हैं इस जवाब को जानना, if you want to know any kind of और answer, किसी भी तरह का जवाब अगर आप जानना चाहते you हैं, need to first understand what is the question. और पहले आपको इस समझ की जरूरत है कि सवाल क्या है। So the Peter received revelation और पतरस ने उस मुकाशफे को मौसूल किया with question. उस सवाल के साथ, Because God never question people. क्योंकि खुदा कभी भी सवाल लोगों पर नहीं उठाता। God never raise questions. खुदा सवाल नहीं उठाता Because God carries answers. क्योंकि खुदा जवाब रखता है। Let me go deep in this. और मैं इसमें बहुत गहरा जाना चाहूंगा। When they did sin, और जब उन्होंने गुनाह किया, और जब उन्होंने गुनाह किया, God says, where are you, Adam? और खुदा ने कहा कि तू कहाँ है आदम? He just said, where are you? उसने सिर्फ इतना कहा, तू कहाँ है? And now they are answering God. और उसी में जवाब है। Now they are answering God. और अब वो से जवाब दे रहे हैं। Now they are answering. अब वो जवाब दे रहे We हैं are naked. कि हम नंगे हैं। You know, you people know the story. और आप सब ये सारी कहानी को जानते हो। Now listen. सुनिएगा। What happens here? यहाँ पर क्या हुआ? So when they did sin, और जब उन्होंने गुनाह किया, and they are out of glory, और वो फिर जलाल से बाहर हो गए, now the answers already, God took all the answers with him.
और खुदा ने तमाम जवाबात को उनके साथ ही ले लिया। Now the earth is full of questions. और अब सवालात से भर गई दुनिया। That's why those people who have the question in their lives, और जितने लोग जिनकी जिंदगियों में आज सवाल मौजूद हैं, they need Jesus and they need revelation. और उनको जरूरत है आज यीशु मसीह की, और उन्हें जरूरत है आज मुकाशफात की। If they receive the revelation, और अगर आज उन्होंने मुकाशफात को पा लिया, they can easily know they are Peter. और वो बहुत आसानी से जान सकेंगे पतरस को, They can easily understand their life as a Simon. और वो अपनी जिंदगी को बतौर शमौन जान सकेंगे, And they can also receive their life as a Peter. फिर अपनी जिंदगी को वो सुधार सकेंगे पतरस के तौर पर। Now listen, what is Simon and what is Peter? और अब हम गौर से सुनिएगा कि शमौन क्या है और पतरस क्या है। Let's read the book of Luke, और हम लूका की अंजील में chapter number 22, 22 बाब में verse number 34. 34 आयत, Luke 22:34. और 22 बाब उसकी 34 आयत। Mago se bereniaha. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knewest me. उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। You all people know about this event और आप सब इसके बारे में जानते हैं बखूबी, because Peter denied Jesus. क्योंकि पतरस ने इनकार किया यीशु मसीह का। Now listen. सुनिएगा, In the whole Gospels, और तमाम अनाजील में he says sometimes Simon. और कई दफा कहा जा रहा है शमौन। If God is directing with the name called Simon, और अगर खुदा मुखातिब कर रहा है नाम लेकर शमौन, so he is directing him as a reed. और वो उसको एक सरकंडे के तौर पर मुखातिब कर रहा है। If God is calling him as a Peter, और अगर वो उसको पतरस के तौर पर मुखातिब कर रहा है, he is calling him as a rock. और वो उसको चट्टान के तौर पर मुखातिब So कर रहा what है। is reed? और फिर क्या मतलब है सरकंडे का? Unstability. और इसका मतलब है किसी एक जगह खड़ा ना रहने वाला, बहने वाला। And what is Peter? और क्या है पतरस? Stability. और वो है मुस्तकम, एक जगह पर कायम रहने वाला। So there is Simon, और वहां पर मौजूद है शमौन, unstability, जिसमें हम कहेंगे गैर मुस्तकम, and there is Peter, और वहां पर है पतरस, which is called stability. और जिसको हम कहेंगे मुस्तकम। Now Jesus is directing to Peter with the name called Peter. और You अब will deny me 3 times. और यीशु मसीह अब पतरस से मुखातिब है कि ऐ पतरस, तूने मेरा 3 बार इनकार किया। So now he is saying you will deny me 3 times before the cook crow. और मुर्ग के बांग देने से बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे। So now the Peter, और अब पतरस, so which is called a rock. और जिसको हम कहेंगे चट्टान, Now Jesus is directing Peter, और अब यीशु मसीह मुखातिब है पतरस से, but the Simon's nature is still there. लेकिन अभी भी वहां पर जो शमौन की नेचर है, वो वहां पर फितरत है, वो वहां पर मौजूद है। The nature of Simon is still there. और अभी भी पतरस के अंदर शमौन की फितरत मौजूद है, The reed nature, और उसकी सरकंडे वाली फितरत अभी भी मौजूद है, easily shakeable. और बहुत आसानी से हिलने वाला, बहुत So आसानी से टूटने वाला। When the temptation came, और जब आजमाइश आई, he easily broke. और वो बहुत जल्दी से टूट गया, And he denied Jesus. और उसने यीशु का इनकार कर दिया। But if you see Peter, और अगर आप पतरस को देखें, after the day of Pentecost, और पेंतिकोस्त के दिन filled with the Holy वो Spirit, पाखरू से भर गया, from that day, और उस दिन, in the book of Acts, और अमाल में हम देखते हैं, nobody writes the name called Simon. और किसी ने भी वहां पर शमौन नाम दर्ज नहीं किया, Everybody put the name Peter, और सबने नाम लिया पतरस, which is rock. और जो है एक चट्टान, Caiaphas, और कैफा है, Caiaphas, और कैफा है, which is rock. और जो एक चट्टान है, Stability, और वो है मुस्तहकम, the strongness, और वो है एक मजबूत शख्स, strength, और वो है एक ताकत, power. वो है एक ताकत। Now Jesus built a church not on Simon.
और यीशु मसीह ने जो कलीसिया तामीर की वो पत्र शमौन पे नहीं की, He built on Peter. और उसने पतरस पर तामीर की। After revelation, और मुकाशफे के बाद, one revelation can change your life. और एक मुकाशफा आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। Just only one सिर्फ revelation. एक मुकाशफा। If you understand the kingdom keys, और अगर आप बादशाही की कुंजियों को जान लें, from many keys, और बहुत सी कुंजियों में से, that revelation is one of the key. और उनमें से एक उसकी चाबी है मुकाशफा। The day you receive revelation और from जिस God, दिन आपने खुदा से उस मुकाशफे को हासिल कर लिया, those people who are new, और जितने लोग नए हैं, I'm not talking about the book of Revelation, और मैं मुकाशफा की जो किताब है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, because the people who, whenever they hear the word revelation, और जब कभी भी लोग मुकाशफा का लफ्ज सुनते हैं, they just directly go to the book of और वो Revelation. यही समझते हैं कि ये बात हो रही है मुकाशफा जो आखिरी किताब है कलाम I'm मुकद्दस not की, उसके talking बारे में, about to read book of Revelation, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। because I already shared the word revelation or reveals mean, और मुकाशफे का मतलब है जाहिर, पोशीदा चीज का जाहिर हो जाना, uncover. और उसका जाहिर हो जाना, उससे पर्दा हट जाना। One revelation can change your life. और कोई एक मुकाशफा आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। When Jesus gave him name Peter, और जब यीशु ने उसको नाम दिया पतरस, now Peter is established. और अब पतरस है मुस्तहिकम, Now he is established now. और अब वो मुस्तहिकम हो चुका है। When he was with the nature of Simon, और लेकिन जब वो उस Shimon शमौन की फितरत के साथ था, he denied Jesus. उसने यीशु मसीह का इनकार किया, A lot of issues and problems और बहुत से मसलों मसाइल you are facing nowadays. और इन दिनों में जो आप जिनका सामना कर रहे हो, In the kingdom of God, you need one revelation और खुदा की बादशाही में सिर्फ आपको एक मुकाशफे की जरूरत है, that can change your whole जो life, कि आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर सकती that है, can change your life. आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर If सकती you है। receive the revelation, और अगर आज आपने उस मुकाशफे को हासिल कर लिया who you are, कि आप कौन हो, the life is easy. कि जिंदगी आसान है, You can win every battle. और आप हर एक जंग को जीतने की ताकत रखते हो। Listen, what happened to Gideon? तो आप देखें कि यहाँ पर गिलतियों के साथ क्या हुआ, Gideon said, what happened to Gideon? और अब यहाँ पर जिदाउन के साथ क्या हुआ। He says, I am poor in my whole tribe और उसने कहा कि मैं अपने पूरे कबीले में सबसे गरीब हूँ, and I am very small in my house. और मैं अपने पूरे घर में सबसे छोटा हूँ। When angel came down और जब फरिश्ता उसके लिए आया, and he speak one thing, और उसने एक चीज कही, he says, you are a greatest warrior. और उसने कहा कि तू एक जबरदस्त सूरमा He है। reveals उसने उस पर जाहिर कर who दिया the Gideon is. और कौन है ये जदाउन, He just give him information. और उसने सिर्फ उसको वो मालूमात दी, Only one revelation और एक मुकाशफा he received जो कि उसने पाया, from an angel, और एक फरिश्ते के जरिए changed से his whole life. उसने उसकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख Now दिया। he is not slave. और अब वो एक गुलाम नहीं रहा, Now he is a great warrior. और वो एक अजीम सुरमा He बन received गया, revelation. और वो एक जबरदस्त सुरमा बन One गया, मुकाशफा को revelation पा can लिया। change your और life. एक मुकाशफा आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता One है, revelation can change your और एक destiny. मुकाशफा आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, One name can change your life. एक नाम आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। The first key of the kingdom of और God खुदा की बादशाही की पहली चाबी, is a revelation. और वो है मुकाशफा। Just pray to God. और खुदा से दुआ कीजिएगा, Let God give you one revelation और खुदा आपको एक मुकाशफा दे to be a great person. एक अजीम शख्स बनने के लिए। Let God give you a revelation about your business. और खुदा आपको कारोबार के लिए एक मुकाशफा दे, Let God give you a revelation for the growth of your ministry. और आपकी मिनिस्ट्री के बढ़ोतरी के लिए आपको मुकाशफा दे। Let God give you the revelation of the growth of your family. आपकी आपके खानदान की बढ़ोतरी के लिए आपको मुकाशफा दे। Let God give you the revelation of the growth of your children. आपके बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए आपको मुकाशफा दे, Because the revelation makes a difference. क्योंकि एक मुकाशफा तब्दील कर देता है। One revelation can change your whole story. और आपकी पूरी कहानी को तब्दील करने के लिए सिर्फ एक मुकाशफा काफी है। Keys of the kingdom of God. और खुदा की बादशाही की पहली चाबी, The key of the kingdom of God और खुदा की बादशाही की पहली चाबी is a revelation. वो है मुकाशफा। Hallelujah. हालेलुया। As I shared a lot of things in this teaching. जैसे कि आज की तालीम में मैंने बहुत ज्यादा चीजें शेयर की, So seek the kingdom और उसकी बादशाही की तलाश and his करें righteousness. और उसकी रास्तबाजी की, All things shall be तो ये सब added चीजें unto you. आपको मिल जाएंगी। And in his kingdom, और उसकी बादशाही में, there is not one key. और वहां पर सिर्फ एक चाबी नहीं है, There is keys. और वहां पर है कुंजियां। Hallelujah. हालेलुया। I just give you one key. और मैंने सिर्फ आपको एक चाबी बताई है, That Peter received one key. और पतरस को सिर्फ एक चाबी मिली, That is revelation और वो है मुकाशफा, of Jesus Christ. यीशु मसीह। Now he received another name. और अब उसने एक और नाम पा लिया। Now Jesus built him
और यीशु मसीह ने उसे तामीर किया and he built a church on him. और उसने उस पर कलीसिया की बुनियाद रखी। That those people who are built in God, और जितने लोग भी खुदा में तामीर किए जा रहे हैं they carry a revelation, और वो मुकाशफे को उठाए हुए हैं। not a book of Revelation. और मैं इसमें मुकाशफा किताब के बारे में बात नहीं कर रहा, They receive something that uncovers on them. और मैं बात कर रहा हूँ किसी उनके लिए उनकी जिंदगी के बारे में किसी पर्दे का हटना, That God reveals something on them. और ऐसी बात का इंकशाफ होना जो उनको पहले मालूम ना थी और किसी बात का उन पर जाहिर होना। God reveal और खुदा जाहिर करे on them उन पर about their situation. और उनके हालात के मुताबिक See what किया पतरस पर, that is Jesus, जो कि यीशु है the Son of God. खुदा का So बेटा। there was a question as an answer. और सवाल जवाब में, And what happened? और फिर क्या हुआ? Their life was like a Simon. और उसकी जिंदगी बन गई पतरस शमौन की तरह। Their life was a Simon called Reed. और उसकी जिंदगी थी शमौन की तरह जो कि है एक सरकंडा। Now Jesus gave him a name, और यीशु मसीह ने अब उसका नाम तब्दील किया और उसे नाम दिया Peter. पतरस। Now he need to live life like a Peter. और उसे चाहिए था कि वो अपनी जिंदगी पतरस की तरह गुजारे। But the day he carries the nature of Simon, लेकिन जिस दिन उसने शमौन की फितरत को अपनाया the things happened to him. तो फिर चीजें उसके साथ वकू पजीर हुई And the Holy Spirit came upon him. और उस पर पाखरू आया। In the public, the Simon denied Jesus. और बहुत से लोगों की भीड़ में उसने यीशु मसीह का इनकार किया। And when the Holy Spirit came, और जब ये पाखरू आया, when he stood like a Peter, और लेकिन वो जब पतरस के तौर पर खड़ा हुआ लोगों में, his first message, और उसका पहला कलाम, that changed 3,000 people. और उस कलाम ने 3,000 लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया। What is this? ये क्या है? One revelation can change you, और एक मुकाशफा बदल सकता है आपकी जिंदगी को, and you can change a 3,000. और आप तब्दील कर सकते हो 3,000 लोगों की You जिंदगियों need को। one revelation सिर्फ आपको एक मुकाशफा की जरूरत है to change your life, आपकी जिंदगी को तब्दील करने के and लिए, you will change the world. और आप पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। And what is Simon? और क्या है फिर यहाँ पर? Instability. और पतरस शमौन का मतलब है गैर मुस्तहकम। And what is Peter? और पतरस यहाँ पर पतरस क्या है? Carrying a commission and as an apostleship. और जिसने एक अपने ऊपर रसूल की हिदमत ली हुई थी। So Peter carry a responsibility of an apostle and a great commission. और उसने एक रसूल के तौर पर हिदमत अपने कंधों पर ली हुई थी। And also an apostle. और एक रसूल के तौर पर हिदमत उसके कंधों पर And थी। also head of the house. और उस घराने का हेड था वो। The head of the church. और कलीसिया का सरदार। So these three things. और तीन चीजें। These things are on the name called Peter. और वो तीन चीजें थी नाम, उस नाम पर जिसे हम कहेंगे पतरस। So these are on Peter. और वो थी पतरस पर, not on Simon. और वो इस वक्त शमौन पर नहीं थी। The greatest thing और अजीम चीजें and the blessed thing और बाबरकत चीजें and the greater investment और बहुत ज्यादा अजीम बोया गया God want to put on you. और खुदा चाहता है आपके ऊपर करना। But you need a revelation. लेकिन आपको आज जरूरत है मुकाशफे की। Live your life as a Simon. और अपनी जो आपकी शमौन वाली जिंदगी है उसको छोड़ दीजिए। Live life of Simon, my dear. और छोड़ दीजिए शमौन वाली जिंदगी। You are a Peter. और आप हैं पतरस। So the next teaching, और अगली आने वाली तालीम, I will share the revelation about I will build my church upon you. और मैं तुझ पर कलीसिया तामीर करूंगा। Because in the kingdom of God, क्योंकि खुदा की बादशाही में there are a lot of keys. बहुत सी चाबियां हैं। I just share one, और मैंने आपसे एक बांटी, the key of revelation. और वो है मुकाशफा की Those कुंजी। people who have revelation, और वो लोग जो अपने अंदर मुकाशफात रखते हैं, the revelation of God, खुदा के मुकाशफात, they carry a revelation. और वो अपने पास मुकाशफात रखते हैं, That's why they are successful. और इसीलिए वो आज अपनी जिंदगी में कामयाब है। And what is key? और क्या है फिर चाबी? Access, और वो है रसाई हासिल करना, entrance. और वो है दाखला हासिल करना। Hallelujah. हालेलुया। So God bless you. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। So may Lord Jesus bless you. और खुदा आपको बरकत दे। May Lord Jesus bless you. और खुदा आपको बरकत दे। Keep sharing this teaching. और आज की इस तालीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। I know this is a powerful word of God. और मैं जानता हूँ कि ये बहुत अजीम अल्फाज हैं खुदा के। So Canadian time, और कनाडा के वक्त के मुताबिक we every Wednesday हर एक बुध को, we always come live. और हम हमेशा बराह रास्त आएंगे।
Every Wednesday we always come online, और हम हमेशा बराह रास्त आएंगे हर बुध को। and in your country, और आपके मुल्क में in Pakistan, the आप- time will be Thursday morning. और पाकिस्तान में होगा ये जुमेरात की सुबह Yeah, 9 Thursday बजे। morning. Yeah. So keep sharing this with your friends, families, and the people who love Word of God. और जितने लोग खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं और आप समझते हैं कि जिनको खुदा के कलाम की जरूरत है, उनसे से ज्यादा शेयर कीजिएगा। So share this precious word. और खुदा के इन कीमती अल्फाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा Keep in touch. और हमेशा राब्ते में रहें। We learn more. हम ज्यादा सीखेंगे You will learn more. और आप ज्यादा सीखेंगे। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Shalom. शालोम। Keep sharing this और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर with your कीजिए friends, family, और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ and with all your close and dear ones. और आपके प्यारों के साथ और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। So revise this message. और इसको एक दफा फिर से सुने That will surely bless your life. और ये इसमें कोई शक नहीं कि आपकी जिंदगी को बहुत बरकत मिलेगी। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Shalom. शालोम।